السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول ہے جی ہمارا دوسرا ایپیسوڈ 32۔ دوپہر میں نیند لے کر اٹھی تو صوفی نے بتایا فارغ صاحب کہیں باہر گئے ہیں۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا کہ ممکن ہے اس نے میسج کر کے بتایا ہو وہ کہاں جا رہا ہے، مگر کوئی پیغام نہیں تھا۔ جب میلا داؤ سے پوچھا تو انہیں بھی علم نہیں تھا، وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی اجرت میں حیدر کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ کچھ پریشانی سے کھڑکیوں کی طرف دیکھتے اسے اپنی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئی۔ ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک کر اس نے خود کو ریان کے ساتھ مصروف کر لیا۔ نہلا دھلا کر کپڑے بدلے، اس کا بیڈ تیار کیا، پھر جمیلہ داؤد کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا دونوں نے وہیں کھایا۔ وہ بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد البتہ پرسکون تھی۔ اس نے فارغ کے بارے میں پوچھنا چاہا، پھر رک گئی، کہیں ایسا نہ ہو انہیں پریشان کر دے۔ سوچا خود پوچھ لے گی۔ ریان کو ساتھ لے کمرے میں واپس آ گئی تو سلا کر موبائل اٹھا لیا۔ 10 بج رہے تھے، اس کی دھڑکن بہت تیز تھی، فکر آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ آنٹی پوچھ رہی ہیں گھر کب آؤ گے؟ اس نے پھر میسج کیا، ممی سے ابھی بات ہوئی ہے میری، میں نے انہیں بتا دیا۔ حیرت انگیز طور پر جواب فوراً آیا۔ جنت جھنجھلا کر رہ گئی، کب آؤ گے؟ کال کرو پھر بتاؤں گا۔ لب بھیج کر اسکرین کو گھورا۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار سے کال کی گھڑی اب رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہے تم؟ شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی، وہ تب بھی ہوئی تھی مزید تب کی۔ ٹائم دیکھا، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں تو 12 بجنے دو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہی ضبط کر کے جنت نے خود کو کچھ سخت حیرت سے باز رکھا، اور اسی وقت قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ جنت نے بے اختیار سر اٹھایا۔ جنرل نے بے اختیار سر اٹھایا۔ بھورے رنگ کے ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ میں بلبوس اس کا شوہر عام سے گھریلو حلیوں میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم گھر پر تھے؟ آواز چینک سے مشابہتی صدمے سے دبی ہوئی۔ ہاں، مگر صوفی نے کہا باہر تو میں گیا تھا۔ یہ سبل تک لہجہ متبسم تھا، گویا اسپل کا چکر لگا کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہ تھا حیدر اور آغا علی کے ساتھ اس کی آفس روم میں میٹنگ چل رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اس لیے کیا میں خود سے بات کروں؟ اس کی بری چال سمجھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے میں گھر پر ہوں۔ یہ تو جب تم نے میسج کیا تو پتہ چلا۔ اس کی مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ اس نے خود کو بہت کوسا، چپ کر کے بیٹھی رہتی تو ایسا مذاق تو نہ بنتا۔ اس کا پریشان ہو رہی تھی تم؟ اس کے پاس آ کر اس نے معمول کی طرح کشن درست کیا۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ بڑبڑا کر احتیاط سے سونے کے لیے لڑکی، آئندہ سے اسے کال یا میسج کرنے سے پہلے وہ اس کا آفس روم دیکھے گی، اس نے طے کر لیا۔ تمہارا وہ نوٹ پیڈ کہاں ہے؟ بائیں طرف لحاف ہٹا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فارغ نے یاد دلایا تو اس نے لب بھیج کر آنکھیں بند کر لی۔ جنت، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو، اب لکھ کر بتاؤ، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ کروٹ کے بل لیٹی تھی، جل کر کوشن کان پر رکھ لیا۔ اب پتہ نہیں کتنے دن تک وہ اس کے رائٹنگ پیڈ کا مذاق اڑائے گا اور ہاتھ آ کر آنکھیں بند کرے۔ تم اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتی جنت؟ ہاں، اس نے دھیرے دل میں خود کو ڈانٹا۔ فارغ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا، چند لمحے پہلے ہونے والے موصول ہونے والے میسج کو دیکھ رہا تھا۔ تاریخی میں روشن ہوتی اسکرین پر آر اے کا نام جگمگا رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نچلا لب دباتے کس قدر کوشش سے اٹھ کر بیٹھی تھی، تکلیف کا احساس جسے ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی کچھ دیر تک بیٹھی رہی، خیال تھا طبیعت بہتر ہو جائے گی، مگر فارغ درد کی شدت سے اس نے بمشکل پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی فوراً بیدار ہو گیا تو تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیتے پریشانی سے پوچھا۔ نفی مسائل لاتے اس نے بمشکل سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ ارق آلود ہو رہا تھا۔ میں ممی کو جگاتا ہوں۔ شرازی مینشن کی بتیاں یکے بعد دیگر روشن ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سرور کارٹر کا دروازہ کھل گیا۔ مدت مانو چادر لپیٹے تیزی سے باہر سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ڈرائیور حکم ملتے ہی گاڑی نکالنے کو بھاگا۔ اسی ہڑبڑ میں زبشا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ خالہ کہیں جانے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں مسلسل سے چھوٹی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسپتال لے جا رہے ہیں، میں ذرا بڑی بیگم کے پاس ہو جاؤں تو سو جائے۔ زفی سر لا کر واپس اپنے بستر پر ترازو بھی جانتے تھے کہ گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا تھا، پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ذرا سا سوچ کر مسکرائی۔ جو بھی ہوگا خالہ بچے کا خیال رکھنے کے لیے اسے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ انہیں سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھل گیا۔ خالہ اسے بلا رہی تھی۔ موڑ کر انتہے ساتھ ہی اوپر آ گئے۔ ریان کو ملازمہ اٹھائے ہوئے تھے، وہ رو رہا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں تھی، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو ریان کو سنبھالے سے اپنے پاس سلا لے۔ سر ہلا کر وہ ریان کو اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اکثر ریان کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ اس کی گود میں پرسکون ہو کر سو گیا۔ اب وہ اس کی نیند آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں مسلتی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راہداری سے آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ باہر رات بہت سردی۔ زبشا نے لحاف ذرا اچھے سے اوڑھ لیا تھا۔ اس نے اوپری منزل پر اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول دیا۔ وہ جو کمرہ جو اب اس جنت کا بیڈ روم نہیں رہا تھا، فرنیچر بدل چکا تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے، مگر وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کمرے کو سابقہ حالت میں دیکھ سکتا تھا۔ باتیں کرتی ہنسی اپنی پڑھائی کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گلدان میں تازہ پھول سجا رہی تھی، وہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کا ہاتھ ہمیں مسکرا رہی تھی۔ یہ میری نواسی ہے برہان، میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ، میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں جنت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا۔ اس کی آواز آس پاس ہر طرف گونج رہی تھی، اس کا ادھورا وعدہ دل پر ثقیل ہو رہا تھا۔
وہ अब अपने तासुरात को सख्ती में, मोहब्बत को नफरत में, यकीन को शुबहात में बदलते हुए देख रहा था। दिल पर एक भारी बोझ लिए वो गिरने के अंदाज में बैठा, अपना सर हथेली में गिराए हुआ और जिंदगी में पहली बार अपने किसी नुकसान पर रो रहा था। वह नुकसान जो 17 माह पहले से हो गया था, ऐसा नुकसान जिसका इदराक अब जाकर हो रहा था। मेरे सर पर क्या खड़ी हो, जाओ यहाँ से, खुदा के लिए जान छोड़ो मेरी। अम्मा ने कुछ कह दिया तो क्या क़यामत आ गई। माहिन से क्या कह रही थी तुम? चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रही हो? माहिन मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है। वो चीख रहा था। बच्चा बाजू से सख्ती से पकड़े इंतहाई हकारत और कराहत से देख रहा था। तुम इतना गिर जाओगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। बुरहान, मुझे तकलीफ हो रही है। आज अगर तुम्हारे दादा ने अगर नाना जिंदा होते तो तुम्हारा ये घटिया किरदार देखकर वहीं मर जाते। अपना जुमला याद आया और उसकी आंखों का वो जख्मी तासुर जैसे लफ्जों की काट ने से वहीं मार दिया। मैं ऐसी नहीं हूँ। सख्त गिरफ्त में वो सिसक रह गिरे। एक नहीं, दो नहीं, चार। कौन है ये जो खते से ड्रेसिंग टेबल से मिले थे ने फाड़ कर उसके मुंह पर दे मारा। गुस्से और इस्तार में इसका मोबाइल तक तोड़ दिया। वो डरी सहमी और मुतवज्जे सी खड़ी थी। वो देख रहा था। वो कम से ढाल खौफ सदर और परेशान हाल जन्नत कमाल को अपनी आंखों से देख रहा था। जिसने कभी इसने इससे ऊंची आवाज में बात ना की थी, वो अब झिकने लगा, डांटने लगा था, नफरत दिखाने लगा था। मुझसे एक बोझ, एक मुसीबत की तरह नजर आने लगी थी। मायन के साथ जिंदगी मुकम्मल थी। अब इसे और कोई वजूद नहीं चाहिए था। मंजर उभर कर अब मिट नहीं रहे थे। जन्नत कमाल से जुड़ी तमाम यादें, सख्तियां, नफरतें से याद आने लगी। अपना हर रवैया, फैसला और बात मैंने अपनी बीवी के किरदार में आज तक कुछ झोल नहीं देखा। अपना सर हाथों पर, हथेलियों पर गिराते संभाल में थे। इसकी अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी। अपने जवाहरात को यूं रोते देखना बड़ा तकलीफदेह मंजर था इनके लिए। बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पुकारना चाहा तो गुस्से से झटक दिया। बुरहान, चली जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दें मुझे। वो भिपरे हुए अंदाज में कहते हुए बेकाबू हुआ तो मजबूरन उठकर बाहर जाना पड़ा। लॉक लगाए वो दरवाजे से लगकर नीचे बैठ गया था। जो गलती कर बैठा था वो छोड़ ही ना दिया। खसारा आया था जो किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता था। अब सांसें भारी लग रही थी। अब जिंदगी मुश्किल लग रही थी। इसे जन्नत कमाल अपनी जिंदगी में वापस चाहिए थी। वो इसी रिश्ते को, मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लेना चाहता था। वो जन्नत कुमार की पहली मोहब्बत है। वह इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते। वो इसे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती थी। इस घर में हर तरह की सख्ती इसने सिर्फ इसकी जात के लिए बर्दाश्त की थी। इसके साथ जुड़े रहने के लिए इसने सब खामोशी से सहा था। तलाक इसने दी थी, रास्ता इसने खुद बंद किया था। अगर वो पलट आए तो रास्ता खोलकर दोबारा अपना ले तो वो बुरहान वासिफ है, नाना की तरफ से जुड़ा गया वो रिश्ता जिसे कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। वो खुद बता रहा था, समझा रहा था, वो इसके पास जाएगा, माफी मांगे वो इसे मना लेगा, जन्नत कुमारी की जिंदगी में वापस आ जाएगी। मगर मार में थप्पड़ पड़ने वाला थप्पड़ इसे हकीकत की दुनिया में वापस ले आया। वो अपने आप में थम गया था। इसने जिंदगी में पहली बार इन शायद आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। इसने पहली बार इनमें दर्द के साथ एक अजीब सा तासुर देखा था। आइंदा तुम मुझे अपनी बीवी के आस-पास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने शौहर का हाथ मज़बूती से थाम कर नज़रों से ओझल होती। जन्नत कमाल इसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। वो साकिन वजूद के साथ-साथ गिरदार चुपचाप बैठा था। वाहिद फजीलत आई अपने बेटे के गम में निढाल रोती रही थी। गहरी तबरीज़ धुंध में लिपटा हुआ अजीब-सा मौसम से सर पड़ता पुरसुकून करता है। इसने अपनी माँ को देखा। वो जिंदी शबीह की तरह थे। इसने अपने पुराने घर की सीढ़ियों का वो मंजर एक बार फिर देखा। वह स्नेहा जो ऊपर खड़ा हुआ और जन्नत वहां कहीं नहीं थी। कच्ची ईंटों पर खून था, ना चीखों, पुकार और कहराम था। इसने नफीसा को देखा, वह नमाज पढ़ रही थी। अम्मी वो इनके पास रुकी, वो पंजों के बल झुक गई थी। इसने कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने इसे तर आंखों से देखा, फिर हाथ पकड़ा, फिर गले लगाया। इनका लम्स इसे पहली बार महसूस हुआ। कुछ था जो उन्होंने हथेली पर रख दिया। मुझे माफ कर दिया। मैं मुस्कुरा कर इसे देखा, फिर हाथ छुड़ा दिया। हसनैन साथ ही था। वो उसे सीने से लगाए उठ गई। फर्श पर अब खून नहीं था, सीढ़ियों पर अब कोई हसनैन नहीं था। वो पुराना घर एकदम से खाली हो गया। अम्मी हॉस्पिटल में आमदा रफ्त के साथ उभरती वो मध्यम सी आवाज एकदम से सन्नाटे में बदली। से लाशोर से शोर का मंजिलें तय करते इसके हवास एकदम से बेदार हुए थे। कमरे में नीली की रोशनी में एक तारीकी से नजर आ रही थी। इसने अपने आस पास हर तरफ निगाह दौड़ाई। इसे अपना बच्चा कहीं नजर नहीं आया। घबरा कर मुतवज्ज होकर फिर इसने उठने की कोशिश की। इसने आवाज देना चाहिए, आवाज नहीं निकल रही थी। इसका चेहरा तर होता, इसकी हालत गैर हो रही थी। दरवाजा खोलकर नर्स अंदर आई थी। लेडी रही प्लीज, मेरे शोहर कहाँ हैं? इसका दिल खौफ और अंदेशों में गिरा, शिद्दत से धड़क रहा था। कुछ बुरा हो गया, इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। नर्स कहाँ गया रही थी, वो सुन नहीं रही थी। मेरे शौहर कहाँ हैं? प्लीज़ मेरे शौहर को बुला दें। इसी वक़्त मिद्दत अंदर आई। इसके पीछे फारिसा हाल से बहरहाल होता है। इसका हाथ पकड़े वो रोने लगी। वो शौक और सदमे की ज़द में थी। वो खुद को तन्हा और बेबस महसूस कर रही थी। इसने अपना वजूद अंदर से खाली और खोखला लगा। फारिस, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेहरे कतरा भी बिखरे बालों को पीछे हटाते इसने जन्नत से कहा, नर्सरी में है, अभी लेकर आते हैं इसे। जन्नत की रुकी हुई सांसें एक लम्हे में बहार में थी, मगर दिल शिद्दत से धड़कता रहा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, तुम्हें यहीं रखना जरूरी था। गिरफ्त में लिए नरमी से वो हुआ। वो गुज़श्ता 24 घंटों से आईसीयू में थी। सब ठीक है। अब माँ को ऐसा करार नहीं आ सकता जब तो अपने बच्चे को देख न लेती।
संभल नहीं सकती थी। कुछ ही देर में बीबी क्राइब को सिखरते हुए नर्स अंदर आए तो जन्नत से अलग होकर फारिस उठ गया। वो अब देख सकती थी। वो फारिस जान के बेबी क्राइब पर झुकता हुआ देख सकती थी। बेड सिटिंग पोजीशन में एडजस्ट करते हुए इतने से तकिए का सहारा दिया। फारिस ने बेबी कॉर्ड से सफेद मखमली कपड़े में लेटे हुए बच्चे को उठाया तो जन्नत की धड़कनें थम सी गई थी। तुम बात हुई जन्नत कुमार माहीन अब्दुल करीम का सरापा आंखों में आया। हमारे से अपने गालों पर नमी महसूस हुई। दूसरी शादी का सोचो बुरहान, इस लड़के से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। इसके एहतराम में एक हार शेफ जैसे एक सख्ता तारी हो चुका था। इसकी सांसें रुक गई थी। बच्चे को उठवाया इसकी तरफ झुका तो वह सफेद मखमली से कंबल से झांकती नन्ही मोले से मुठियां भिजी हुई नजर आई। फिर वही सा चेहरा नुमाया हुआ, आंखें बंद थी जिन्हें खोलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर रोने की तैयारी पकड़ रहा था। वह इतना छोटा था कि फारिस के हाथों से लेते हुए से डर लगा। जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने तो कभी दुआ करना नहीं छोड़ी। जनाब इसने सिसकते हुए हिम्मत करके अपने कपकपाते हाथ मिलाए। फारिस ने बहुत एहतियात से बच्चा इसके हवाले कर दिया। मौज़ात तो अम्बिया के लिए भी हुआ करते हैं, मगर वो मुझसे बगैर दुआ, सब्र और आरज़ी के लिए नहीं हुई। ये पॉइंट वो मिस कर रही थी। वो अपने हाथ पैर टांगों को महसूस करता जंबिश देता रोने लगा। जन्नत भी रोने लगी। इसने अपने बेटे को वो भींच कर होठ से लगा लिया। अपने आप में छुपाते इसका मुंह चुमा, फिर इसके गाल को छुआ, नाक को, होठों को, फिर इसके पिछाने पर अपने लब रखे। हर दुख जो इसे मिला, हर तकलीफ जो इसने सही, हर अज़ियत जो इसके ऐसे में आई, सब भुला दिया। वो लम्हा, वो बस एक लम्हा था जिसने सारे ज़ख्मों को मिटा दिया। अल्लाह ताला हमें हमेशा बढ़कर अता करता है जन्नत। वो आपको हैरान कर देता है। बच्चे की आंखें खुली हुई थी, रंग नुमाया और तो फारिस वजदान की आंखें थी। रंग भी रंग भी इसका खदोखाल भी इसके। वो फारिस वजदान का एक मिनी वर्जन था। इसने फिर सर उठाकर से देखा। इसका बेतरतीब सा हो गया। बता रहा था गुज़िश्ता 24 घंटे इस पर कितने भारी गुजरे थे। बच्चा ठीक था, लेकिन बीवी की वजह से जो परेशानी सी हुई थी, इसकी झलक कभी भी इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। कितना प्यारा है ये माशरा। वो झुककर अपने बेटे को देखने लगा था। फिर जन्नत को, फिर वो रोते हुए हंस पड़ी। वो बच्चे को बार बार चुप रही थी। अपनी आंखों में तशक्कुर की नमी लिया, अपनी जगह ठहर सा गया था। वो जन्नत कमाल की आंखों में वही मोहब्बत देख सकता था जो औलाद के लिए एक माँ की आंखों में हो सकती है। वही तड़प, वही रहम, वही दिल जो एक माँ का होना चाहिए, वही एहसास जो एक माँ को होना चाहिए। इसके औलाद के हिस्से में अब वो इसके गम नहीं आ सकते थे, महरूमियत, नफरत, तन्हाइयाँ नहीं आ सकती थी। इसे माँ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ना बाप जिंदगी की भीड़ में गुम होकर इसे बुला सकता था। बच्चा फिर से रुला। जन्नत इसे पीट कर रोने लगी। मेधत तकिया दुरुस्त करते इसके पास बैठ गई। कुछ ही देर में जमीला दाऊद इससे मिलने आ गई। रेहान भी साथ है। उन्होंने नई फैमिली मेंबर को अपनी गोद में उठा लिया। ये तो बिल्कुल फारिस है। उन्होंने मोहब्बत से अपने पोते का माथा चूमा। जन्नत मुस्कुराई, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वो दुआएं पढ़कर इस पर फूंक रही थी। रेहान जन्नत के पास बैठा हुआ था। चुनर से बेबी को जरा हैरत से बकौर देखता हुआ इसके तासुरात सबको मजा दे रहे थे। जरा देर के लिए इसकी गोद में दिया बच्चा रोने लगा तो रेहान ने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। ऐसे लगा बच्चे को दर्द हुआ या किसी ने इसे मारा है। वो नहीं चाहता तो बच्चा रोए। भाई को भूख लगी है इसलिए रो रहा है। जन्नत ने समझाना चाहा। इसने बच्चे से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिया, फिर किसी तरह से जिद करके बेड से उतर कर दूर हो गया। मासूम आंखों में अभी भी कोई फिक्र ठहरी हुई नजर आ रही थी। बार बार बच्चे को देख रहा था जो अब इसकी मम्मा के पास था और अब रो भी नहीं रहा था। इसका क्या नाम रखें? जमीला दाऊद के जाने के बाद अब सिर्फ दो ही थे जो इस नन्ही सी जान पर झुके हुए थे। तुम बताओ, मैं आंटी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा है इसका नाम तुम रखोगी। वो चंद लम्हों तक इसे मोहब्बत पास नजर से देखती रही। क्या नाम सोच सकी तो बस अब एक ही जहन में आ रहा था। जैन कैसा रहेगा? फारिस ने इसकी तरफ देखा था। असरार से वादा था इसे अच्छा लगा है। जैन फारिस से राजी है। जन्नत ने मुकम्मल नाम लिया तो मुस्कुरा। परफेक्ट है। जन्नत ने फिर नन्हे जैन को देखा जो आंखें मूंदे मुटिया पीछे नींद की बातें में उतरा हुआ था। तीसरे दिन इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बसराजी मंजिल पर ड्रेस ने आलीशान किचन हवेली को रोशनी में नहलाया हुआ थे। कम मुलाजिम अपना काम कर रहे थे। वसीर सब्जाजार का दावत खसूसी का इंतजाम अभी से हो रहा था और ये सब जो जमीला दाऊद की ख्वाहिश पर हो रहा था। इस घर में वो हमाद के लिए ऐसे कई फंक्शन गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर चुकी थी। अब पोते की खुशी थी। अब वो इस खुशी को जन्नत और फारिस के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। हफ्ते के दिन दावत रखी गई थी। इस दिन इनका घर मेहमानों से भर गया था। जन्नत की बहनों को खुसूसन बुलाया गया था। वो दावत हकीकत थी जिसमें इनके बहुत से करीबी दोस्तों ने भी शिरकत की थी। आयमा खास तौर पर अपनी भाभी के साथ आई थी। जुनैद भाई बच्चों के साथ कनाडा गए थे तो वो ना आ सके। अक्सर बहुत जिद करके 2 हफ्तों के लिए आ गई थी। जना तुम्हारे कमरे में थी जिस वक्त नीचे डाइनिंग टेबल हाल में मेहमान खवातीन के लिए खाना लगाया जा रहा था। वो बड़ी खुशी से बच्चे को देखने ऊपर आई थी। अल्लाह अभी ये तो इतना प्यारा है, दिल चाहता है खा लूं। जन्नत कमाल ने सर उठाया। दूसरी तरफ खिलाई पर विश्वास चढ़ाते फारिस बजान की काबिल नजरों की जद में आ गई थी। जैन को गोद में लिया अक्साय एकदम बौखलाई। वो मैं प्यार से खाने की बात कर रही हूँ। फौरन से बता दी जुमला और ज्यादा खतरनाक हो गया। अक्साय दिल्ला जन्नत का मुझे इसकी जरूरत है तो इस करते अपने हाथ बढ़ाया। इसने आखिर इसी में जाने के बच्चे को खामोशी से इनके हवाले करके चली गई और चली गई। अब फारिस साहब समझे कि मैं सचमुच की कोई आदम और स्ट्रेस केस की दाएं तरफ दीवार से लगकर बढ़ाई
अपने पेशानी पर हाथ मारकर खुद को सजा दी। माँ बाप के सामने कह रही हूँ, बच्चा कहाँ जाऊंगी, तुझ पर तुझ पर अक्सा। दोबारा हाथ मारा। कौन आदमखोर है? दिल सामने अखबार हाथ में लिए खड़ा था। इस पर नजर पड़ते ही वो बदमिजाज कितने तेज कान थे इसके बेचारे, जो कोई लफ्ज भी चूकते। मैं हूँ आदमखोर। मैं अपनी तरफ इशारा किया। अखबार फैलाए इसने चंद लम्हों तक अक्सा को देखा। हैरत हुई ना सदमा पहुंचा। यूं जैसे साख्ता से बहुत पहले से वाकिफ हो, यकीन करके सर हिलाकर दोबारा से पढ़ने लगा। अक्सर जलकर कोयला हुई। पता नहीं क्यों ये यहाँ क्यों खड़ा है। सीढ़ियों उतरकर फारिस नीचे आया तो गड़गड़ा कर सीधी, तुम्हारी आप ही तुम बुला रही हैं। फारिस ने कहा तो अदब से, सच अक्सा जी साहब, मेरे बेटे के अलावा कुछ और खा लो। तरीफी सूट में मलबूस मुस्कुराहट दबाकर वो जेबों में हाथ डाले संजीदगी से बोला, तो सर झुकाया। अक्सा ने आंखें मीच ली, फिर ऊपर गई तो जन्नत जैन को बेबी कॉट में सला रही थी। बच्चों का ख्याल रखने के लिए तो वहीं बैठी थी। आप ही, मैंने सचमुच खाने की बात थोड़ी ना की थी। जन्नत सफेद मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी, शायद रंग बार खुले छोड़े थे। खाना खा रहे थे उन्हें अभी नहीं, मर्दों के खाने का इंतजाम पार्ट था। जबकि ज़ोफ़ी के लिए खाना कमरे में भिजवा कर बक्सा के साथ नीचे आ गई। वो हमारे को अफ़सोस करते कुछ नई मेहमान ख़वातीन से मिल रही थी, फिर वो अपनी बहनों के पास जा बैठी। वो अपने भांजों से एक बार फिर मिल रही थी। इसने सोचा नहीं था इसकी औलाद की खुशी पर इसकी तमाम बहनें भी शरीक होंगी। वो सबको अच्छा अखलाक और बेहतरीन रवैया दे रही थी और वो खुश और मुतमिन नज़र आ रही थी। जमीला दाऊद बेहद खुश थी। इनकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर थी। वो इनका चेहरा भी खिला हुआ था। वो मौके मुनासिबत से काफ़ी अरसे बाद बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। लुकिंग सो प्रिटी। फारिस और जान भी चेयर पर की तरफ झुका तो उन्होंने बेख्तियार इसका चेहरा हाथों में लेते हुए इसके बिछाने का बहुत सा लिया। इस सब के लिए थैंक यू सो मच मम्मी। इनके हाथ हैं, अपने हाथों के लिए वो पंजों के बल झुकी है। मेरे पोते की खुशी है। बस अब मैं चाहता हूँ आप अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाएं। इसने इरादा बांध कर साथ में सर को जम्बीश दी। वो इसके लिए ये भी करें। कुछ ही देर बाद में इनसे इजाजत लेकर बाहर चला गया। तो फिर रेहान को जन्नत के पास छोड़कर गई तो अक्सर ने इसे उठा लिया। इसका ख्याल मैं रख लूंगी। अपनी जन्नत जमीला दाऊद के साथ इनकी दोस्त से बात करी थी। सर हिला दे, वो रेहान से बातें करती, इसे अपने साथ ही बाहर ले आई। सीढ़ियों पर रुककर वो दूर इशारा करती से बहुत कुछ दिखा रही थी। लॉन रोशन था। अक्सर ने इसे जरा देर को नीचे उतार दिया। इसकी माँ की कॉल आ गई थी। वो सामने वहां जहाँ मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था वहीं पर फैजान खड़ा था। रुख बदलते इसकी नजर रेहान शराजी में पड़ी और अपनी जगह रुक गई। शराजी मंजिल के सदर ग्राउंड पर अपने छोटे छोटे कदम धरते हुए कुछ बेताबी से बेकरारी से इसकी तरफ आ रहा था। फारिस के तासुरात लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हो, और मुस्कुराहट जो लोगों पर थी एकदम से खत्म हो गई। दोस्त साथ ही थे। वो इतने प्यार से बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे। कौन है ये मुंजमद सवाल? वजूद पर वो एक सवाल कारी ज़र्फ बन कर लगा। शराबी मंचल का वसीह लॉन मुलाजमों के साथ तमकीनत से कदम उठाता, बारों में हाथ फेर कर उससे अलग करता रहा। वही सवाल, वही लॉन, वही घर, वही मंजर। हमारे मुलाजिम का बेटा है वो। आवाज, बाप की आवाज वैसे अंदर तक मुझे से फना से करके रेयान सिराजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। अपने हिसाब से निकलते इसने झुककर इसे नरमी से उठा लिया। दोस्त मुतवज्जा था। जवाब का मुंतजर कि इसने कभी फारिस का ये रूप नहीं देखा था। मेरा बेटा है ये। जवाब देकर रेहान की तरफ मुतवज्जा वजह से लिपट गया था। फारिस का दाना हाथ मुझ पर आ गया। रेहान पर नजर पड़ते अक्सर ने बेकरारी से हथेली को मसला, अभी तो यहीं खड़ा था, वहां कैसे चले जाए? फारिस साहब जरूर डांटने के बच्चे को ठंड में बाहर क्यों ले आए हो? लेकिन फारिस साहब के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो रेहान के साथ इस शेड के नीचे भड़कती हुई आके आप पास बैठ गया। वो अब रेहान को कुछ खिला रहा था। खैर है, कह दूंगी खुद ही चला गया। वो अंदर आ गई। रेहान कहाँ है? अक्सर। वो फारिस साहब के पास है बाहर। जन्नत ने पूछा तो फौरन जवाब दिया, बाहर तो काफी ठंड नहीं है। वो जरा परेशान हुई, मोबाइल निकाल लिया ताकि फारिस को कॉल करे। वो रेहान को अंदर ले आए। वहीं ठंड नहीं है जहाँ सारे मर्द बैठे हैं। आग जलाई हुई है। आप ही पाए मर्द ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो कॉल करते करते रुक गया। अगर ऐसी बात होती तो फारिस से फौरन अंदर ले आता। सर हिलाकर मुलाजमा के सर में चंद काम लगाती ड्राइंग रूम में चली गई। अक्सर ने खुशी खुशी केस के साथ अपनी चंद तस्वीर बनाई। फिर ख़वातीन में जा बैठी। मुबारक हो, आप दादी बन गई। बेटा हुआ ये खबर ठंडी बुखार की तरह आरज़ू जहांगीर को अपने वजूद पर बढ़ती महसूस हुई। इसकी कोई तस्वीर है? फौरन से पूछा। वह इस तस्वीर को अपने इलाकों पर में शेयर करना चाहती थी। वो अपने दादी बन जाने की खबर पूरी दुनिया को सुनाना चाहती थी। वो एक माँ है, एक सास और एक दादी। वो फारिस से जुड़े तमाम रिश्ते से जुड़ जाना थे, मगर बच्चे की कोई तस्वीर न थी। शाम तक दोबारा कभी तस्वीर को पूछा। फारिस में चांद के करीबी साथियों में बहुत लोग ऐसे थे जिन तक इसकी रसाई मुमकिन है, लेकिन तस्वीर किसी के पास न थी। जो बच्चे के अकीके पर गए थे, इनके पास भी नहीं। तस्वीर लेने की इजाजत नहीं थी। आरज़ू लब काट कर रह गई। वो जान गई थी इस तरह की सख्ती वो क्यों कर रहा है। वो हरगिज़ नहीं चाहता कि इसके बच्चे की तस्वीर आरज़ू जहांगीर के साथ जोड़कर फैलाई जाए। जब पल पर दोबारा मुझसे कोशिश करो तो वो घर मिलने चली जाओ। मुझे बस इसकी एक झलक देखनी है। इसे 12 बजे शूट पर जाना था। 3 बजे इसका इंटरव्यू था। 6 बजे मीटिंग थी। वो अपने सभी जरूरी काम छोड़े बेकरारी से बैठी हुई थी। दिल चाह रहा था पाकिस्तान पहुंच जाए और अपने पोते से मिले। नाम क्या रखा है? जैन। जैन फारिस जेर लब दोहराया। नील कुतुब की एक रैंडम तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते इसने अपनी दादी बन जाने की खबर पूरी दुनिया को सुना दी। इसका पोता जैन शराजी मुबारकबाद के मोहब्बत भरे पैगाम में सूरत ऐसे नौजवान दादी पर सबको रश्क आने लगा। कुछ मिनटों में तस्वीर कई मिलियन लाइक्स हो गए, मगर वो कुछ ना हो सकी। वजूद अंदर से खोखला सा था। मुबारकबाद के मैसेज मजाक उड़ाते महसूस है, कभी भी इसके हिसाब से नहीं हो रहा था।
زندگی میں پہلی بار وہ اپنی بڑھتی ہوئی کامیابی پر خوشی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ٹیکس اگر اس کے لوگوں پر مسکراہٹ نہیں کر رہا تھا، وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے حاصل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ میں بچوں کے کپڑے کے لیے ایک برانڈ لانچ کروں گی، زیٹک کے نام سے۔ جویریہ حبیب نے گہری سانس لے کر اپنی میم کو دیکھا۔ ان کا فوکس اپنے کام سے ہٹ رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ غیر ضروری معاملات پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے فارس فیضان کا ذکر اب زیادہ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی میم کو سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر وہ دیکھ سکتی تھی وہ اپنے مقصد سے بھٹک رہی ہے، اپنے ارادوں کو بدل رہی ہیں۔ اچانک سے بدلتا رویہ اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔